Good morning to all my dear students, and welcome once again to our nuclear physics series. Today we are going to discussing about the Fermi theory of beta decay. That is the Fermi theory of beta decay. So just we recap about the some previous lectures. In previous lectures, we are going to introduce about the beta particles in detail, like the three form of beta decay. Later one, that is the neutrino hypothesis, and such like of the number of articles we have been discussed in previous lectures. Now today we are continue with the Fermi theory of beta decay. So in that Fermi theory of beta decay, first of all I would like to say here the measured half lives for beta decay, which is vary from 10 to the power minus 3 second to 10 to the power 6 years. So these are the large half lives of beta radioactive nuclei against the existence of electron in the nucleus. So such kinds of the various types of beta decay can be classified. What I say, the beta decay, such kinds of these beta decay which is classified by the angular, first one by the orbital angular momentum, which is carried out which is carried out by the neutrino electrons as well as neutrino. So these similarly these classifications is nothing but the by the change of parity in such process, change of parity. So I want just to recap this point I want to recap here. The beta decay, various type of beta decay can be classified by the orbital angular momentum, which is carried out which is carried out by electron and neutrino, and similarly by the process of parity change. So these decay, and up now move with these decay, beta decay. Now these decay also the classified as the first one, that is the Gamow Taylor, and another one, that is the Fermi decay. Gamow Taylor decay and Fermi decay. These two are very important for the classification of the decay. So in that Gamow Taylor decay, we see the first one, that the intrinsic spin of spin intrinsic spin of the electron and the neutrino parallel and in that Fermi decay, it's simply, that is spin anti-parallel. So it is the decay classified into
these decay are classified into Gamow-Taylor decay as well as the Fermi decay. So Gamow-Taylor decay is nothing but the intrinsic spin of the electron and neutrino parallel, and Fermi decay is nothing but the spin anti-parallel. So the another one point is here for zero orbital angular momentum. This angular momentum which is came from here, beta decay classified just from here. What I say, the zero orbital angular momentum carried off the allowed transitions. After that we see the transition selection rules. So in case we detailed see what is the transitions, allowed transitions and forbidden transitions. So just we hear introductory part of that topic. So for zero orbital angular momentum carried off, the decay constant which is increases roughly as the fifth power of the decay energy. What I say, the zero orbital angular momentum allowed transitions, these are the allow the transition that the decay constant increases roughly as the fifth power of the beta energy. Fifth power of the beta energy. Beta net dot, that is the decay energy. So these all the effect which is explained by the Italian physicist, that is the Enrico Fermi, that is we simply called as the Fermi, in 1934. What I say, the effect to explain these effect, which explain this effect, the Fermi explained this effect in 1935, which is formulated a successful theory of beta decay which is completely based on Pauli's neutrino hypothesis. We already see the Pauli's neutrino hypothesis. So just assumptions, some of the assumptions so comes from these theory we see step by step here. Assumptions, just see one by one here the assumptions. So first assumptions, what I say, the light particles, the electrons and neutrino, just 1 minute here. Okay, look at here. The light particles, the electrons and neutrino are created by the transformation of a neutrino into proton in a nucleus, vice versa. That simply says that when the neutrino are transferred into protons, the neutrino is transferred into protons. At that time, the light particles, electrons and neutrino are created. Second one, the second one, what I say, the energy remain conserved in the decay process. जो कुछ भी एनर्जी फॉर्म होगी, जो भी कंजर्वेशंस के थ्रू एनर्जी होगी, these remain conserved into beta decay process, the available energy being shared among the electrons and the neutrino. जो भी एनर्जी है वो किससे शेयर्ड होगी, एक तो इलेक्ट्रॉन से होगी और दूसरी आपके न्यूट्रिनो से होगी. ड्यू टू द लार्जर मास, the product nucleus does not receive kinetic energy. जो भी प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा आपका, वो काइनेटिक एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाएगा. सो थर्ड वन, द न्यूट्रिनो हैज रेस्ट मास जीरो. हम लोगों ने ये तो पहले ही देखा था कि न्यूट्रिनो कैसा होता है, उसका रेस्ट मास जीरो होता है, या तो वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं
कि इसको जो भी मास है वो मास 0 के बराबर है। एंड फोर्थ वन, इट्स अ सिंपली द बीटा डीके प्रोसेस इज एनालॉगस। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसी है? एनालॉगस टू द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है एनालॉगस टू द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो नेक्स्ट वन, अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड है जो इसके अंदर एक्ट करेगी, बराबर है, वो जो है वो दीज आर एक्टिंग इन अ प्लेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी न्यूक्लियॉन्स की जो भी सोर्सेस है, कौन कौन से सोर्सेस है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रिनो है, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो है, उसके बाद पॉजिट्रॉन है, फिर न्यूट्रिनो है। ये जो है इन सब दे हैव द सिमिलर टू द चार्ज एज द सोर्स ऑफ फोटॉन्स। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, electron neutrino field is weak in contrast to the short range. What I say, just it is one of the important points. It is very very important points. Electron neutrino field ये कैसी यहाँ पे weak in contrast है, weak in contrast to the short range, to the short range. और जो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होगा, जो एग्जिस्ट होगा बिटवीन द न्यूक्लियस बॉन्ड के अंदर से। ठीक है, ये बहुत इजी वाला था लेकिन इंपॉर्टेंट है। 6 द टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी इज अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन बिकॉज ऑफ द स्मॉलनेस ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। सो 7 नंबर का जो आता है वो बहुत ही अलग सा हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, जो कि सिंपली पैरिटी को लेकर एक्सप्लेन करता है, क्योंकि इसके अंदर की जो पैरिटी चेंज होगी, ये जो पैरिटी चेंज हम लोगों ने बताया था कि पैरिटी चेंज इन प्रोसेस, पहले हम लोगों ने यहाँ पे बताया था पैरिटी चेंजेस, यहाँ पे कहीं तो हम लोगों ने बताया था कि, लेकिन अब यहाँ पे क्या बताया कि नो न्यूक्लियर पैरिटी चेंज ऑकर्स एंड हायर ऑर्डर टर्म इन आर बाय लैम्बडा कैन बी निग्लेक्टेड। जो हायर टर्म है, हायर ऑर्डर की जो टर्म है उसके अंदर आर बाय लैम्बडा जो होता है वो कैसा होगा? बहुत निग्लिजिबल होगा, निग्लेक्टेड होगा। क्यों निग्लेक्टेड होगा? क्योंकि जब हम हायर ऑर्डर की बात करेंगे तो जो उसकी वैल्यू निकल के आएगी वो कैसी होगी? लार्ज वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी? वो उसकी लार्ज वैल्यू होगी। अब इसकी लार्ज वैल्यू है और इसकी बहुत कम वैल्यू है, तो एज कंपेयर टू क्या होगा? एज कंपेयर टू क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो कैसी होगी? बहुत कम होगी। मतलब ये वैल्यू कैसी निकल के आ रही है? ये निग्लिजिबल वैल्यू निकल के आ रही है। कैसी निकल के आ रही है? निग्लिजिबल वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग 8 नंबर का, वो क्या है? अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मूव्स होता है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी किसके अलॉन्ग है? जो कि हम लोग बोलते हैं वो इसके अलॉन्ग है, c/10, बराबर है इन न्यूक्लियर कैलकुलेशंस। मगर जब ये उसके अलॉन्ग मूव होती है, दैट टाइम दे कैन मेड विद द नॉन रिलेटिविस्टिक न्यूक्लियर वेव फंक्शन। जो नॉन रिलेटिविस्टिक न्यूक्लियर वेव फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या होती है? मूव होती है। अब ये हो गए थे सिंपली हमारे अज्यूम्शंस। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे देखेंगे कि अब थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कुछ, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हम लोगों ने देखी थी कि कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस कर रही है, बराबर है। तो उस अजम्पशंस को हम आगे फॉरवर्ड करते हुए देखेंगे कि सबसे पहले क्या है कि ये इट इज एक सिंप्लीफाइड वर्जन कंसिडर करो फर्मी थ्योरी का। क्या करो? लेट अस कंसिडर अ सिंप्लीफाइड वर्जन किसका? फर्मी थ्योरी का। किसका करना है हमें? एक सिंप्लीफाइड वर्जन फर्मी थ्योरी का करना है। अब जो फर्मी पोस्टुलेट हम लोगों ने देखे थे, इसके अंदर जो हमारा ई माइनस था, और या एंड बोल लो, एंड जो न्यूट्रिनो था,
ई माइनस, और जो न्यूट्रिनो था वो कब बन रहा था, जब बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे थे तब। हम लोगों ने देखा था, हमारा पहला ही पोस्टुलेट था ये क्या था, हमारा पहला ही पोस्टुलेट था। ये देखो, द लाइट पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूट्रिनो आर क्रिएटेड, बराबर है। तो ये कब हो रहा था, जब बीटा पार्टिकल इमिशन हो रहे थे। तो इन दैट वे जो सिमिलर सिचुएशन आ रही है, उस सिमिलर सिचुएशन के अंदर हमारे जो फोटोन भी क्रिएट हो रहे हैं एट दैट टाइम ऑफ एटॉमिक, और जो न्यूक्लियाई हमारा वो क्या हो रहा था, डी एक्साइटेशन हो रहा था। मैं फिर से ये पॉइंट समझाता हूं आपको। हम लोगों ने क्या किया कि एक सिंप्लीफाइड वर्जन कंसिडर किया, किस चीज का, फर्मी थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू द फर्मी पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होते हैं, क्रिएट होते हैं कब, जब ये बीटा पार्टिकल इमिट्स होते हैं तब। दिस इज सिमिलर टू, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, किसके सिमिलर है, जब फोटोन क्रिएट्स होते हैं, एटॉमिक और न्यूक्लियर का डी एक्साइटेशन होता है तब। तो मतलब क्या आ रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है फर्मी थ्योरी का, बीटा डीके का जो एजम्पशंस है वो क्या है, दीज आर दी इंटरैक्शन। वो कैसे है, इंटरैक्शन फॉर द बीटा डीके प्रोसेस। अब एक सिंपल बात बताओ कि इसके अंदर से क्या हो रहा है, इस बीटा डीके के अंदर से, अब ये जो बीटा डीके है, इस बीटा डीके के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनो क्या कर रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। दैट मीन्स अब ये बीटा डीके की जो इंटरैक्शन प्रोसेस होगी, जो इंटरैक्शन रिस्पॉन्सिबली होगी फॉर जो बीटा डीके की, उसके अंदर बीटा डीके हमारा कैसा होगा, वीक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा हमारा, ये वीक हो जाएगा। तो जब ये वीक होता है, तो वीक होने के बाद हमें यहाँ पे एक क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म लेनी पड़ती है, उसका नाम निकल के आता है यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी। क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, ये परटर्बेशन थ्योरी। सो अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। अब जब हम लोग इसका एक्सप्रेशन देखेंगे ट्रांजैक्शन रेट के अकॉर्डिंग, तो हमें दो चीज देखनी पड़ेगी। एक तो देखना पड़ेगा यहां पे इनिशियल क्या है, इनिशियल, और दूसरा जो देखना पड़ेगा वो क्या होगा, हमारा फाइनल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इनिशियल है उसको आई से डिनोट करेंगे, जो फाइनल होगा इसको एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये होगी सिंपली। और हैमिल्टोनियन तो हमें पता है, हैमिल्टोनियन हम किससे बताते हैं, एच से बताते हैं। और हैमिल्टोनियन क्या है, हैमिल्टोनियन एक रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे कैरेक्टर है जो कि डीके प्रोसेस को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब ये जो एच, चलो ठीक है, ये पहले ये देख लो, ये जो एच है ना, ये जो एच है इसको हम लोग बोलेंगे इंटरैक्शन हैमिल्टोनियन, इंटरैक्शन हैमिल्टोनियन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक डिराक नोटेशन यहाँ पे लेंगे जो कि ट्रांजिशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे शो करेगा। ट्रांजिशंस ऑफ दी प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे वो क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, अब ले लेते हैं वो वाला इक्वेशन। यहाँ पे क्या इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है हमारा, एक जो पी एफ आई इज इक्वल टू 2 अपॉन एच क्रॉस, ये डिराक नोटेशंस के अंदर ले लेंगे हम इसको। ये हो गया एफ एच डब्ल्यू आई ठीक, ये वाला इक्वेशन हो गया। अब जो फर्मी गोल्डन रूल है, ये जो है ना, इसको बोलते हैं फर्मी गोल्डन रूल। दिस इज द फर्मी गोल्डन रूल, जो डायरेक्ट नोटेशंस के अंदर हम लोगों ने ट्रांजिशंस प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, फर्मी गोल्डन रूल कहेंगे। अब इसके अंदर के जो टर्म है ना वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाली जो टर्म है, रो ऑफ
E, it is called as the density of states vector. ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है. अब रो ऑफ ई जो निकल के आ रहा था हमारा, ये वाला रो ऑफ ई जो निकल के आ रहा था, सिंपली इट गिव्स द नंबर ऑफ अवेलेबल फाइनल स्टेट. ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ अवेलेबल फाइनल स्टेट, नंबर ऑफ अवेलेबल फाइनल स्टेट पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट एनर्जी. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? रो ऑफ ई इज इक्वल टू डी एन बाय डी ई, डी एन बाय डी ई. ये जो एन है, ये एन क्या बता रहा है? नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ पार्टिकल. ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ पार्टिकल, जो कि डीके प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है. और एक सिमिलरली वो क्या बताते हैं? तो आपका गिवन वॉल्यूम बताते हैं. और ई क्या है? ई इज नथिंग बट दी एनर्जी. ई क्या है? हमारी एनर्जी. लेकिन कौन सी एनर्जी है वो? टोटल एनर्जी. अब इसके अंदर जो भी इक्वेशंस देखे हम लोगों ने, सबसे पहले ये वाला इक्वेशंस, इसको क्या कहा था हमने? फर्मी गोल्डन रूल. और ये जो इक्वेशन 1 है, by using the equation 1, it is possible to consider the transition with electron energy between the states. इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो ट्रांजिशन होता है, वो ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, जो कि सिंपली है ई ई एंड ई ई प्लस डी ई ई. ठीक है, ये है. ये हमें यहाँ पे क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन ये सिंपली हमारे अंडरस्टैंड के लिए है. एंड अनदर वन, द डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट. डेंसिटी कौन सी है हमारी? रो ऑफ ई. अब डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स की है, जो कि कंप्लीटली डिटरमाइन हो रही है अकॉर्डिंग टू दैट बीटा माइनस स्पेक्ट्रम से. किससे डिटरमाइन होगी हमें वो? बीटा माइनस स्पेक्ट्रम से, जो कि हमें डायरेक्ट नोटेशन से देगी एफ ऑफ एच डब्ल्यू आई, ये वाले इक्वेशन से. मतलब आपका ये इक्वेशंस कहाँ आ रहा है? ये यहाँ पे आ रहा है. इससे हमें क्या देगा वो? आपको एक मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ बीटा डेके का वहाँ पे वो एक्सप्लेन करेगा. तो ये जो था ना, इसके अंदर मैं आपको फिर से बताता हूँ. देखो अब इसके अंदर क्या क्या है. ये जो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके है, इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शंस देखा था सिंपली. उसके बाद कुछ अजम्पशंस देखे थे. अजम्पशंस के बाद हम लोगों ने क्या किया? एक डायरेक्ट नोटेशन जो कि ट्रांजिशंस प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है, वो लिया. और उसके अकॉर्डिंग हमने ये जो फर्मी थ्योरी है, फर्मी थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी भी कैसी ट्रांजिस्ट होती है वो देखा. उसके बाद बीटा माइनस पार्टिकल भी देखे. और जो मैट्रिक एलिमेंट्स है, वो मैट्रिक एलिमेंट्स जो कि यहाँ पे आते हैं, वो कैसे डिनोट होते हैं वो भी देख लिया. और जो वेव फंक्शंस है, वो वेव फंक्शंस की इनिशियल्स एंड फाइनल स्टेट जो कि कंप्यूटेशंस ऑफ इन्वॉल्व्स न्यूक्लियस होती है, वो देखी. और फाइनली हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि ये जो रो ऑफ ई है, जो कि डेंसिटी स्टेट बताता है, वो कंप्लीटली डिटरमाइन दी बाय दी बीटा माइनस स्पेक्ट्रम. सो गाइज, ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ये थ्योरेटिकल था, इसलिए मुझे इसको इस तरह से लेना पड़ा. अगर थोड़ा भी मैथमेटिकल होता तो मैं इसको बोर्ड्स पे ले लेता. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एन्जॉय योर डे. थैंक यू.